हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब जी। दिस इज़ हरपाल सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जी। आज हम बात करेंगे B1 B2 वीज़े की। जी हाँ, एज़ यू नो कि B1 B2 की वेट टाइम अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, सो पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट द वीज़ा स्लॉट्स, बट अभी इस वीक और लास्ट वीक कुछ एम्बेसी ऑफिशियल्स ने कुछ डिक्लेयर की थी चीज़ें। सो विल टॉक अबाउट इट एंड आई गिव यू द अपडेट। ठीक, चलो टाइम ना ख़राब करते हो, विल स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो बात करते हैं B1 B2 वीज़े के बारे में। एज यू ऑल नो, दिस वीज़ा कैटेगरी इज़ ऑन द लीस्ट प्रायोरिटी, सबसे कम प्रायोरिटी पे है वीज़ा। और इसकी जो डेट्स हैं वो बीच में ओपन होती हैं फिर बंद हो जाती हैं। जब ओपन होती हैं तो जस्ट फॉर 24 आवर्स, क्योंकि बैकलॉग इतना ज़्यादा है कि पीपल वोंट गेट स्लॉट। Several months before, Secretary Blinken had spoken about to take steps to reduce the visa backlog in India. Instead of it decreasing, it had gone up to more than 1,000 days, sometimes 1,200 days. What steps the US is taking to reduce those visa backlog, because this is impacting people to people and business to business ties between the two countries? Certainly understand those frustrations, and I can tell you that it is a priority of the Secretary and of the Department to do everything we can to reduce that backlog and ultimately to reduce the wait times. We are committed to safeguarding national security while facilitating legitimate travel to non-immigrant travelers. And we know that timely visa processing is essential to the U.S. economy and to the administration's goal of family reunification. We've made great strides in recovering from pandemic-related closures and staffing challenges, but we're still working to respond to the significant demand for visa services. And that demand for visa services has only increased as pandemic restrictions have eased in countries across the world, and people are looking for opportunities to travel to the United States. We are successfully lowering visa wait times worldwide. We've doubled our hiring of U.S. Foreign Service personnel to do this important work. Visa processing is recovering faster than projected. And over the coming year, we expect to reach pre-pandemic processing levels. We issued more student visas in fiscal year 2022 than in any year since 2016. Our embassy and consulates in India, in particular, broke their all-time record for the number of student visas issued in a single fiscal year. We issued nearly 125,000 student visas. We, of course, recognize that some applicants may still face extended visa wait times, and we're making every effort to further reduce visa interview appointment wait times as quickly as possible in India and around the world, including for first-time tourist visa applicants. लास्ट ट्यूसडे को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि जो ग्लोबल मेडन वेट टाइम है जी B1 B2 का, दैट इज़ रिड्यूस टू 2 months। जी हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्लोबली बात करूँ, एक्सपेक्ट दीज कंट्रीज, इंडिया, ब्राज़ील और चाइना, आई एम सॉरी, मैक्सिको और चाइना, इनको छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में जो वेट टाइम है फॉर B1 B2 उसको रिड्यूस कर दिया गया है विद इन 2 months। ठीक है, सो दे आर वर्किंग ऑन इट, दैट्स व्हाट दे सेड। बट अगर इंडिया में बात करें, दैट वेट टाइम इज़ स्टिल हाई। ठीक है जी, वो 3 साल था, बट नाउ इट इज़ रिड्यूस टू 2 years। येस, आई विल शेयर यू द करंट वेट टाइम जो अभी चल रहा है। अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो मुंबई में इस टाइम 623 डेज़ का वेटिंग टाइम है। जी हाँ, और अगर बात करें हैदराबाद की, तो दैट इज़ 599 days स्टिल फॉर द वीज़ा इंटरव्यू। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली की बात करूँ तो मैं 575 डेज़ की वेटिंग है। ठीक है, और अगर बात करूँ चेन्नई की तो 598 डेज़ की। ठीक है जी, और कोलकाता की बात करें तो 596 डेज़। जी हाँ, तो ये जो टाइम बताया मैंने, ये आज का टाइम है, आज का इस वीक का टाइम आई वुड से। ठीक है जी, तो अभी टाइम कम हुआ है। ये पहली बार वैसे हिस्ट्री में हुआ था कि वेट टाइम जहाँ 3 साल तक पहुंच गया था, एंड इट वाज अंडर प्रेशर, स्पेशली फॉर इंडिया। यूएस डिपार्टमेंट ने काफ़ी दे आर टेकिंग स्टेप्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं वही बताऊंगा मैं आपको। एंड दे ट्राई टू रिड्यूस वेट टाइम। इवन जो ड्रॉप बॉक्स है इंटरव्यूअर वाले हैं, उसके बावजूद भी जो पहली बार इंटरव्यू
ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ B1 B2 का उनको इंटरव्यू देनी पड़ेगी। जी हाँ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਪਲਾਇਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ 2024 ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂ 25 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਇੰਸਪਾਈਟ ਆਫ ਵੇਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਸਟਾਪ ਅਪਲਾਈਂਗ, ਅਪਲਾਈ ਫॉर द ਵੀਜ਼ਾ, क्यू च आ जाओ, बिकॉज ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਵੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਮੂਵਿੰਗ ਦੈਨ ਦ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ अपनी इंटरव्यू डेट चेंज कर सकते हो। यस, आप लोग इंटरव्यू डेट एडवांस कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फ़ीस। जी हाँ, सो आप ये मत सोचिए कि टाइम डिलेड बहुत है तो आप अप्लाई नहीं करें। तो दे आर सेइंग आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई करने के बाद जैसे लाइन शुरू होती है और वो जो टाइम होगा डेफिनेटली जितना एक्सपेक्ट किया उससे जल्दी ही कम होगा। तो आप अपनी विदाउट फी पे करने के बजाय आप अपने उसको डेट चेंज कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं ऑन अवेलेबिलिटी, सब्जेक्ट ऑन अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला भाई एमरजेंसी अपॉइंटमेंट जो हैं वो तो हाई हैं, अब आपको लाइक एप्लीकेंट्स जिनको क्राइटेरिया में मैच करते हैं कुछ ही दिनों में उनको एमरजेंसी अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ठीक है जी। उन्होंने अपॉइंटमेंट जी है मिल सकती है, वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑप्शन हैगी एमरजेंसी अपॉइंटमेंट की। सो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕੋ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਲਦੀ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਦ ਵੇਟ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ टाइम घटाना ही घटाना है, विल डेफिनेटली रिड्यूस द वेट टाइम, उस पर काम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं जी, अगर बात करूँ बैकलॉग की, ठीक है जी, बैकलॉग की बात करूँ तो बैकलॉग को रिड्यूस करने के लिए यूएस ने एप्लीकेंट्स की एलिजिबिलिटी बढ़ा दी है, लाइक दे हैव पुट मोर क्राइटेरियाज टू गेट एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर इंटरव्यूअर। जी हाँ, मतलब उन्होंने ज़्यादा ऑप्शंस दे दिए लोगों को जो कि इंटरव्यूअर में आ जाएंगे, ठीक है जी। और उसमें आपको एज यू नो आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, और एम्बेसी क्या कर रही है जी, वो डॉक्यूमेंट्स अब्रॉड भेज रही है, वो वहाँ पर प्रोसेस किए जाते हैं, एडजुकेट किए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने इवन स्टाफ जो है वहाँ पे हायर किया है जस्ट टू प्रोसेस दिस, तो इसको फास्ट करने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग फॉर रिड्यूसिंग द बैकलॉग। अगर इतना मैं बैकलॉग के बारे में और बात करूँ तो प्रायोरिटाइज अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स अभी भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किए जाएंगे, वो भी जब सेशन होता है, ठीक है जी। सो उनको ऑलरेडी सेट कर रखा है, लाइक वेन एवर देर विल बी स्टूडेंट्स फॉर एनी सेशन उनको वीज़ा पहले दिया जाएगा, ठीक है जी, या स्लॉट्स बोले तो उनको पहले दिए जाएंगे। और सेकेंडली जो है ड्रॉप बॉक्स केसेस को भी प्रायोरिटाइज किया जाएगा उन लोगों के लिए जो वर्क वीज़े वाले हैं। जी हाँ, H1 हो गया, L1 हो गया, ये वीज़ाज़ को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा। और उसके बाद जो B1 B2 वीज़ा वाले हैं जिन्होंने रिपीटेड वीज़ा अप्लाई किया है, ठीक है जी, ऑलरेडी वीज़ा है या एक्सपायर हो चुका है पिछले 4 साल के अंदर, दे कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। सो ये 3 जो हैं उनकी प्रायोरिटाइज लिस्ट में, इसको फटाफट दे वांट टू प्रोसेस एंड डू इट। और यूएस एक्सपेक्ट भी कर रहा है जी इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए। दे सेड कि जितना हमने प्रोजेक्ट किया है उससे पहले हम कम कर देंगे, बट आई डाउट, मेरे को पता लाइक आई एम नॉट श्योर कि वो करेंगे, कैसे करेंगे, बिकॉज अभी तक दे आर नॉट गेटिंग इंटरव्यू डेट्स, तो उस पर भी डिले हो रहा है। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट दे आर सेइंग, क्योंकि जो वो लोग ऑफिशियली बोलते हैं वो मैच नहीं कर पाते। बट एनी हाउ विल सी कि टाइम जल्दी कम होता है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। बट पहले से कम हुआ है, यस, पहले वेटिंग टाइम 900 अबव डेज था, 1000 डेज हो गया था। अभी जो मैंने आपको शेयर किया है दैट इज़ अराउंड 500, बिलो 600। सो डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन इट, आई होप वो टाइम जल्दी कम आ जाएगा, दैट्स व्हाट दे सेड। और दूसरा उन्होंने ग्लोबली जो टाइम है वेट टाइम वो कम कर दिया है, दैट्स व्हाट दे से, ठीक है जी, ग्लोबली कम हो गया। बट जैसे मैंने बताया ये 3 कंट्रीज़ जो हैं मेजर हैं एप्लीकेंट्स, ठीक है जी, उसका थोड़ा डिले अभी भी चल रहा है। बट अदरवाइज ग्लोबली देव सक्सेसफुली रिड्यूस टाइम टू विद इन अ मंथ और 2 वेटिंग टाइम, ठीक है। और इसको करने के लिए और एक स्टेप लिया जाए तो दे हैव हायर्ड यूएस फॉरेन सर्विस प्रोफेशनल्स, उन्होंने हायर किए हैं जी बहुत सारे, जो कि इस इम्पॉर्टेंट काम को करते हैं और वीज़ा प्रोसेसिंग जो है फास्ट करते हैं। दिस इज़ व्हाट इट वाज शेयर्ड लास्ट वीक इन द मीडिया। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो। आई होप यू विल हैव अ लिटिल बिट आइडिया कि क्या चल रहा है B1 B2 के में।
वीज़े के रिगार्डिंग. So I hope you're gonna use this information wisely. Okay जी, चलो till my next video, you guys take care. Best wishes.